9ویں 10ویں کا امتحان جو ہے وہ 4 مضامین میں ہوگا، باقی جو مضامین ہیں ان میں نہیں ہوگا۔ 11ویں 12ویں کا جو امتحان ہے وہ صرف الیکٹو سبجیکٹس میں ہوگا۔ 10ویں اور 12ویں کے امتحان پہلے ہوں گے اور 9ویں اور 11ویں کے امتحان جو ہے وہ بعد میں ہوں گے۔ حکومت کا رواں سال ہر صورت بورڈ امتحانات لینے کا اعلان، 7 جون کو تمام تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت۔ بین الصوبائی وزراء تعلیم اجلاس میں اہم فیصلے، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی نیوز کانفرنس، کہا 9ویں اور 10ویں کے امتحانات اختیاری مضامین اور ریاضی کے ہوں گے، 11ویں 12ویں کے امتحانات صرف اختیاری مضامین کے ہوں گے۔ فیصلہ کیا ہے امتحانات کے بغیر گریڈز نہیں ملیں گے، امتحانات 10 جولائی کے بعد لینے کا فیصلہ کیا ہے، ہر پیپر میں مناسب وقفہ رکھا جائے گا تاکہ بچے تیاری کر لیں۔ شفقت محمود نے کورس نامکمل ہونے کی طلبہ کی شکایت کو بھی درست تسلیم کر لیا۔ اگر ہماری تجارت بڑھنی ہے اور کنیکٹیوٹی تاجکستان سے بڑھنی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو۔ تو جب امریکنز جائیں گے، اگر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہوئی افغانستان میں، تاجکستان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا۔ اسلاموفوبیا کی وجہ سے دنیا کو اسلام کی حقیقت سے دور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی تاجکستان کے صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں گفتگو، کہا خطے میں افغان امن عمل کی کامیابی سے ہوگا۔ امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان میں دہشت گردی بڑھنے کا خدشہ ہے، موجودہ حالات میں بھارت سے تعلقات کشمیریوں سے غداری ہوگی۔ تاجک صدر کا اپنے پرتپاک استقبال پر اظہار تشکر، تاجک صدر امام علی رحمان نے کہا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھائیں گے۔ دوسری طرف دونوں ملکوں میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع، تعلیم، ثقافت کے شعبوں میں مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط۔ فلسطینی اور کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہ ہونے سے تکلیف میں ہیں، انصاف کے مسائل دنیا بھر کے سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ECO پارلیمانی اسمبلی کے اختتامی سیشن سے خطاب، افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد پرامن انتقال اقتدار چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی، گلوبل وارمنگ جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ حکومت اور شہباز شریف کے درمیان معاملات طے، حکومت نے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ شہباز شریف کی عدالت کو توہین عدالت کی پیروی نہ کرنے کی یقین دہانی، سپریم کورٹ نے قرار دیا شہباز شریف کو جس انداز میں ریلیف دیا گیا وہ کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتا۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا فوجداری مقدمات میں ملزم کی نقل و حرکت کو کیسے محدود کیا جا سکتا ہے۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ سے پوچھا 1 سال میں کتنے مقدمات کی؟ جمعے کو 12 بجے سماعت ہوئی۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے فیصلہ جلدی آ جائے تو مصیبت، تاخیر ہو جائے تو بھی مصیبت۔ وفاقی بجٹ میں خالص ٹیکس وصولی کا ہدف 5,829 ارب روپے مقرر کرنے کا فیصلہ۔ ایکسپریس نیوز نے بجٹ دستاویز کی کاپی حاصل کر لی۔ اگلے مالی سال کے لیے براہ راست ٹیکس وصولی کا ہدف 2,122 ارب روپے مقرر کرنے کا فیصلہ۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں وصولی کا ہدف 356 ارب روپے رکھا جائے گا۔ کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں وصولی کا ہدف 785 ارب روپے۔ انکم ٹیکس وصولی کے لیے گروتھ کا ہدف 22% اور سیلز ٹیکس وصولی میں گروتھ کا ہدف 30% ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں وفاقی بجٹ میں کم آمدنی والا طبقہ عمران خان کے نشانے پر ہے۔ PTI حکومت بجٹ میں بھاری ٹیکس لگا کر معمولی تنخواہیں وصول کرنے والوں پر معاشی بوجھ ڈالنا چاہتی ہے۔ مہنگائی سے پریشان عوام پر نئے ٹیکسز کا بوجھ مسترد کرتے ہیں۔ بجٹ میں عام آدمی کو معاشی طور پر کچلنے کی سازش ناکام بنائیں گے۔ بلاول صاحب آپ کو عوام کا نہیں اقتدار کا درد ہے، بجٹ عوام دوست ہوگا۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا جوابی وار کہا بلاول صاحب سندھ میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ کراچی میں زمینیں، پارک، کھیلوں کے میدان اور سڑکیں قبضہ مافیا اور چائنا کٹنگ کا شکار ہو گئیں، انہیں کس طرح بحال کرایا جائے گا؟
मुल्क में मौजूदा महंगाई इमरान खान की वजह से है। वजीर आजम ने रवां साल बिजली की कीमतों में 21% इजाफा किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आम आदमी के अखराजात में इजाफा हुआ। वजीर आजम, वजीरों और मुशीरों के अलावा किसी की आमदन नहीं बढ़ी। शौकत तरीन साहब की बात मानते हैं कि इमरान खान साहब की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। इमरान खान ने एहतसाब नहीं, सिर्फ लोगों पर जुल्म किया। वजीर खजाना शौकत तरीन और सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार की मुलाकात। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए की रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, नौजवानों में रकम की तकसीम का अमल हर सूरत तेज करना होगा। दिए गए कर्ज को आइंदा माली साल में डबल करेंगे। सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार ने कहा, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर आम करने के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम सबसे अहम मंसूबा है। पंजाब के जिम्मे 9 खरब 8 अरब रुपए का भारी कर्जा। महकमा खजाना के मुताबिक आइंदा 36 साल तक सूद समेत असल रकम की मद में अदायगी करनी पड़ेगी। ऑरेंज ट्रेन की वजह से कर्जों की सालाना अदायगी के बोझ में 16 अरब रुपए का इजाफा होगा। पंजाब को इस वक्त कर्जों की अदायगी की मद में सालाना 62 अरब रुपए से जायद की अदायगी करना पड़ती है। सूबाई वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, सूबे में 170 अरब के तरक्याती काम हुए, बजट कैसे इस्तेमाल हुआ इसकी रिपोर्ट नहीं दी जाती। मोमिन खसूसी कामरान मंगश ने पेशावर में मीडिया को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जो अपनी मईशत की रिपोर्ट जारी करेगा। सिंध और पंजाब के दरमियान पानी का तनाज़ा। गुद्दू के बाद सक्खर बैराज पर भी पानी की आमद और अखराज का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पंजाब ने इरसा को रिपोर्ट भिजवा दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि सिंध पानी की सूरत हाल मापने के फार्मूले पर अमल नहीं कर रहा। पंजाब की 3 रुकनी टीम ने गुद्दू के बाद सक्खर का मुआयना किया। अमला पानी का डिस्चार्ज टेबल ही फराहम न कर सका। सक्खर बैराज की पानी मापने वाली गेज खराब और मट्टी में दबी हुई पाई गई। पंजाब में गंदम और आटे की बढ़ती कीमतों में कमी लाने के लिए हंगामी इक़दामात। मार्केट में गंदम की सट्टेबाजी रोकने के लिए फ्लोर मिल्स और ट्रेडर्स को फौरी इक़दामात करने की हिदायत। गंदम के बड़े ज़खायर रखने वाली मिल्स को ज़खायर की मुकम्मल आटा पसाई की हिदायत। फ्लोर मिल्स का कहना है आटे की कीमत में 40 रुपये फ़ी थैला तक कमी कर दी। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पर समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जजेस फैसलों में इख्तिलाफ करते हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया के हवाले से बहुत मनफी तकरीर की। खुलकर बात करने की आड़ में जो मुंह में आए बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिस अदलिया को बुरा कहा अब उसी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अदलिया ने शौकत अजीज सिद्दीकी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया था। जवाब में उन्होंने जो किया वो सब देखें। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस की समाअत कल तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में सूबे में आवारा कुत्तों की बहुतात और वैक्सीन की अदम फराहमी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत का आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने आवारा कुत्तों से मुतालिक हेल्पलाइन 109 बहाल करने और इसे कुत्तों से मुतालिक शिकायत के लिए मखसूस करने का भी हुक्म दिया। कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 1843 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.9 रही। वबा से मजीद 80 अफराद जान बहक। मजमूई अमवात 20,930 हो गई। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं, दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बेहतर रही। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ का कहना है कि मुल्क के दिफा में मुसल्ह अफवाज ने गरां कदर कुर्बानियां दी। पाक बहरिया किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है।
राजनपुर कच्चे के इलाके में डाकुओं ने 2 मुगवी पुलिस एहलकारों को छोड़ दिया। दोनों एहलकार थाना बंगला अच्छा पहुंच गए। पुलिस और डाकुओं के दरमियान गुज़श्ता रात मामला तय पा गए थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुगवी एहलकारों को डाकुओं के रिश्तेदार छोड़ने के बदले छोड़ा गया। कराची के इलाके नाजिमाबाद 3 नंबर में फूड स्ट्रीट और रहायशी इलाके में सीवरेज का निज़ाम तबाह। आलूदा पानी गलियों और सड़कों में जमा हो गया। दुकानदारों के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन की वजह से कारोबार पहले ही न होने के बराबर है। रही सही कसर सीवरेज की बदहाली ने पूरी कर दी। आलमी इदारा सेहत ने हंगामी इस्तेमाल के लिए चीन की साइनोवैक वैक्सीन की मंजूरी दे दी। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 17 करोड़ 19 लाख से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 35,75,000 से जायद। भारत में 1,33,000 नए केसेस, मजीद 3,169 अफराद हलाक। बरतानिया में जुलाई 2020 के बाद गुज़श्ता रोज पहली मरतबा कोरोना वायरस से कोई हलाकत नहीं हुई। अमरीकी शहर लास वेगास में जिंदगी लौट लाई। 1 साल बाद समाजी फासलों और मास्क की पाबंदियों को खत्म कर दिया गया। लोगों का जश्न। सबसे पहले अहम खबर, हुकूमत का रवा साल हर सूरत बोर्ड के इम्तिहानात लेने का ऐलान कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 7 जून को तमाम तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त है। बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम इजलास में ये अहम फैसले किए गए। वज़ीर तालीम ने कहा कि 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात इख्तियारी मज़ामीन और रियाजी के होंगे। इसके साथ साथ 11वीं 12वीं के इम्तिहानात सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के होंगे। ये भी वज़ीर तालीम की जानिब से बताया गया। 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें, यानी कि मज़ीद 2-3 हफ्ते जो है वो बच्चों को मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। हमने बोर्ड्स को ये भी कहा है एक पर्चे और दूसरे पर्चे में थोड़ा सा वक्फा भी रखें। 10वीं और 12वीं के इम्तिहान पहले होंगे और 9वीं और 11वीं के इम्तिहान जो है वो बाद में होंगे। हम ये चाहते हैं कि तीसरे हफ्ते सितंबर तक सारे रिजल्ट जो है वो आ जाएं, और जब वो रिजल्ट आ जाएं तो यूनिवर्सिटी में और मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और बाकियों में दाखिला जो है वो आसान हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि दुनिया को इस्लामोफोबिया की वजह से इस्लाम की हकीकत से दूर किया जा रहा है। जबकि ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने कहा कि सूरत हाल बेहतर होने पर पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में काम करेंगे। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज उठाएंगे। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। ताजिक सदर को वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजिक सदर के साथ होने वाले मुआहदों के बारे में बताया। MOU साइन हुए और इससे इंशाअल्लाह हमारी जो ट्रेड टाइज़ हैं वो गहरी होती जाएंगी। और उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ताजिकिस्तान से जो कनेक्टिविटी है गवादर के लिए, इनके लिए भी आसान होगा, हमारे पाकिस्तान के लिए भी उस कनेक्टिविटी से ट्रेड टाइज़ हमारी और बढ़ जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दोनों मुल्कों के लिए कई मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। दोनों मुल्कों के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अफ़गानिस्तान में एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, कि जब अमेरिकन छोड़ के जाएं अफ़गानिस्तान को तो वहाँ स्टेबिलिटी हो, एक कंसेंसस से एक ऐसी कोई गवर्नमेंट हो जो ये इंतशार को रोक सके। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर दोहराया कि भारत की जानिब से 5 अगस्त के इक़दामात वापस लेने तक ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ये बिल्कुल कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों की
बिट्रेल होगी, उनसे हम गद्दारी करेंगे। इसलिए हम जब तक हिंदुस्तान रिवर्स नहीं करता हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने कहा कि ताजिकिस्तान पाकिस्तान को अहम ब्रादर मुल्क समझता है, तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहां हैं। वजीर आजम से मुलाकात से पहले ताजिक सदर और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भी मुलाकात हुई। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत और शहबाज शरीफ के दरमियान मामला तय पा गए हैं। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ की तरफ से भी अदालत को तौहीन अदालत की दरखास्त की पैरवी न करने की यकीन दहानी करा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। मजीद बताएंगे अकील अफजल। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत के दौरान हुकूमत और शहबाज शरीफ के दरमियान मामला तय पा गए। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत को तौहीन अदालत केस की पैरवी न करने की यकीन दहानी करवा दी, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त को निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों में खाली आसामियों पर फौरी तैनातियों का हुक्म दे दिया और रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। दौरान समाअत जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि फौजदारी मुकदमात में मुल्जिम की नक्लो हरकत को कैसे महदूद किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुना गया। फैसला जल्द आ जाए तो मुसीबत, ताखीर हो तो भी मुसीबत। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश किया, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। एक साल में कितने मुकदमात की जुम्मा को 12 बजे समाअत हुई, बताया जाए कितने मुकदमात में यकतरफा रिलीफ दिया गया। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने किया। साथ ही रिपोर्टर वकास अहमद के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।